السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. گھڑی کی سوئیاں جیسے زویا کی دھڑکن سے مقابلہ کر رہی تھی. اپنے دیس میں جب کوئی اپنا نہ ہو تو سب کچھ پرایا لگنے لگتا ہے. ہر گزرتا لمحہ اسے آفس سے لیٹ ہونے کے خوف میں مبتلا کر رہا تھا. اسے سب لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں کروانی تھی. اکیلے فلیٹ کے کمرے میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیزی سے ہونٹوں سے لپسٹک کو ٹچ اپ دینے لگی. ایک ہاتھ سے بال سمیٹ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیگ میں ضروری فائلز ڈال رہی تھی. وہ ایسی رفتار پکڑ چکی تھی کہ جیسے چابی پہ گھومنے والی گڑیا ہو. آج اگر پھر لیٹ ہوتی تو وہ شخص اس کا باس اور اب اس کا شوہر بھی ایک لمحے کی تاخیر پر بھی طوفان کھڑا کر دے گا. رشتے کی نوعیت بدلی تو زویا کو لگا مصیبتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہیں. وہ اس پر ایسے کڑی نظر رکھتا ہے جیسے اس کا قیمتی سونا چرا کر بھاگ نکلے گی. تبھی فون کی گھنٹی بجی. اسکرین پر بھائی کا نام دیکھ کر زویا کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہوا. دل کی دھڑکن رک رک کر بڑھنے لگی. بھائی؟ وہ سرگوشی میں بولی جیسے وہ نام ہی زخم تازہ کر گیا ہو. وہ شخص اس کی مشکلات کی وجہ بن چکا تھا. اپنی گڑیا کو اب مزید باتوں سے بہلا تو نہیں سکتا تھا. فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کے بھائی کی محبت بھری آواز ابھری. زویا کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے کال نہیں کی تم نے. ایسے جیسے کچھ ان دونوں کے درمیان ہوا ہی نہ ہو. زویا کے چہرے پر سختی آ گئی. دل بھرا ہوا تھا. برسوں کا دکھ آنکھوں کے کناروں پر آ کر ٹھہر گیا. اپنے والدین کی یاد ستانے لگی جو اسے احسن کے بھروسے چھوڑ کر گئے تھے. اب کال کر کے کیا فائدہ بھائی؟ تب کہاں تھے جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ اگر آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھے جھوٹی تسلی دینے کو کال کی ہے تو سمجھ جائیں کہ اب میں اکیلے جینا سیکھ چکی ہوں. وہ تیز لہجے میں بولی. مجھے تو جیسے بوجھ سمجھ کر یہاں چھوڑ دیا آپ نے جہاں سارے رشتے ساتھ چھوڑ گئے. میں آپ پر بھی فاتحہ پڑھ لوں گی. اب واپس آنے کی ضرورت نہیں. میں خود کو سنبھال لوں گی. احسن نے لب بھینچ لیے کیونکہ زویا اپنی جگہ ٹھیک تھی. بہت چھوٹی عمر میں اس کی ذات پر یہ بڑی بھاری ذمہ داریاں جو ڈال دی تھیں. اس سے پہلے کہ دوسری طرف کوئی صفائی آتی زویا نے فون کاٹ دیا. گہرے سانس بھرتے خود کو تسلی دینے لگی کہ کچھ نہیں ہوا. آنکھوں سے ایک خاموش آنسو اس کے گال پر بہہ گیا. اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا. شال اٹھائی, بیگ کندھے پر لٹکایا اور باہر نکلنے لگی. لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہی کھڑا تھا, التمش. وہ اسے ٹوکنا چاہتی تھی کہ یوں منہ اٹھا کر اس کے فلیٹ میں مت آیا کرے, لیکن خاموش ہو گئی. سیاہ 3 پیس سوٹ, گھڑی پر نظریں جمائے, ماتھے پر ہلکی سی شکن اور آنکھوں میں سرد سا ٹھہرا ہوا غرور تھا. وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا. 10 منٹ لیٹ ہو زویا. وہ جیسے گھڑی کی سوئیاں گن رہا تھا. زویا نے نظریں چرائی, کچھ بولنے لگی مگر الفاظ پھسل گئے. وہ چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھی. التمش نے گھور کر اسے دیکھا. خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. گاڑی میں خاموشی تھی, صرف انجن کی مدھم آواز اور زویا کے اندر کی بے چینی جو بار بار برابر بیٹھے شخص کا دھیان کھینچ رہی تھی. اس کی انگلیاں بیگ کی زپ سے کھیل رہی تھی. تبھی التمش کی آواز آئی. وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولا, رات آفیشل ڈنر ہے, ریڈی رہنا اور کوئی بحث نہیں. میں تمہیں پک کرنے آؤں گا. زویا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا, سوری سر, آج کل مجھے گھر میں کام ہے. آپ اکیلے چلے جانا. ویسے بھی ڈنر میں جا کر میں کیا کروں گی؟ جلدی سے جان چھڑانے کو منہ پھیر کر بیٹھ گئی. گاڑی رک گئی. التمش نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا. نظریں جیسے برف کی سلیں ہوں. جی مسز التمش زویا. پورا نام لے کر مخاطب کرنا بھی وہ بے حد ضروری تھا. شاید آپ نے ہمارا کانٹریکٹ نہیں پڑھا. اس میں صرف ہاں کی گنجائش ہے, نا کی نہیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پائی. رہی بات پرسنل تعلقات کی تو یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے جو میں وقت پر کھولوں گا. اس کی آواز میں ایک ایسا پراسرار طنز چھپا تھا جو زویا کے اندر تک سرد لہروں کی طرح اتر گیا. دل ڈر کے مارے سمٹ سا گیا. وہ یہاں اکیلے کوئی نئی مصیبت مول نہیں لے سکتی تھی. وقت اور حالات نے اس کے لیے شادی کو ایک مذاق بنا دیا تھا. سردیوں کی شام میں سورج چھپنے والا تھا. کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور کھڑکی سے
छन छन कर बर्फ की सफेद किरचियां फर्श पर गिर रही थी। जोया ने मोबाइल हाथ में लेकर अपने भाई का नंबर डायल किया। उसका दिल बेहद उदास था। दिल में एक उम्मीद थी, एक सहारा और यकीन भी कि वो उसकी पुकार पर जरूर आएगा। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ मानूस आवाज गूंजी। हेलो जोया, कैसी हो? हशाश बशाश लहजा था। जोया की आवाज कांप गई, जैसे मुद्दतों का बोझ सीने पर रखा हो। भाई, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब प्लीज मुझे अपने पास बुला ले, यहाँ अकेलापन मार देता है। उसकी आवाज में भरा हुआ दर्द साफ सुनाई दे रहा था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अकेली दीवारों से बातें करते वक्त गुजरा था। अब ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती थी। उसके पास यहाँ रुकने के सारे जवाब मुक गए थे, मगर दूसरी तरफ से सर्द सी सांस के साथ जवाब आया। जोया बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो, अपने भाई के हालात को समझो, अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। वीज़ा, फाइनेंशियल हालात सब वक्त मांगते हैं। जोया के चेहरे पर मायूसी छा गई। 7 समंदर पार पराए देश में वो जिन हालात का सामना कर रहा था, वो नहीं चाहता था वैसे वक्त से जोया भी गुजरे। वक्त? आपको कभी वक्त नहीं मिला? जब माँ बाबा गए तब भी नहीं, जब हॉस्टल में तन्हा थी तब भी नहीं, और अब भी नहीं। अपने अंदर के गुस्से को दबाते दबाते वो थक चुकी थी। हर बार वो उसे यूं ही कहानी सुनाता था। आखिर को समझता क्यों नहीं कि जोया को अब फैमिली चाहिए थी, अपने भाई का कांधा चाहिए था। फिर बगैर कुछ कहे और सुने उसने फ़ोन काट दिया। आंखों से बहते आंसू उसकी खामोशी का गवाह बने। उसे तो वाकई लगा था कि उसकी तालीम मुकम्मल होते ही वो उसे वापस बुला लेगा। अभी वो सोफे पर गिरे कुशन को मजबूती से थाम कर खुद को संभाल ही रही थी कि अचानक हॉल की लाइट बुझ गई। जोया चौंकी, यूं महसूस हुआ जैसे कोई अंदर घुसा हो। ये लाइट अचानक? तभी दरवाजे के लॉक में से किसी के चाबी घुमाने की आवाज़ आई और उसके शक को यकीन की नज़र लग गई। जोया साकित हो गई, सांसें रुक गई और माथे पर खौफ से पसीना आने लगा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और किसी की कदमों की चाप उभरी। अगर चोर को पता लग गया कि वो अकेली है तो वो अकेली जान किसी का मुकाबला करने के लायक नहीं थी। कौन है? देखो, जो कोई भी हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, शराफत से सामने आओ। जोया ने लरसती आवाज़ में पूछा। वो अपनी आवाज़ पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन नाकाम रही। कोई जवाब ना आया, बस कदमों की चाप और ज़्यादा करीब आने लगी। उस वक्त खड़े होकर मजीद खुद को दावत देने के बजाय अक्लमंदी का मुजाहरा करने का वक्त था। जोया घबराकर कमरे की तरफ दौड़ी और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। कमज़ोर सा दरवाज़ा ही उसकी और बाहर खड़े शख्स के बीच रुकावट था। आंखों को बार बार रगड़कर साफ करने की कोशिश कर रही थी। खौफ से जान हलक को आई पड़ी थी। बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खोलो, मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, मुझे गेट तोड़ने पर मजबूर मत करो। किसी मर्द की करख्त आवाज़ गूंजी। जोया के हाथ कांपने लगे, जिस्म से जान निकलने वाली हो गई। जल्दी से टेबल दरवाजे से लगाया और फौरन अपना मोबाइल उठाकर भाई का नंबर मिलाने लगी, लेकिन वो फ़ोन काट चुका था। तभी से याद आया कि उसके भाई ने एक पाकिस्तानी इमरजेंसी नंबर दिया था, एक जान पहचान वाले का, और कहा था उसका दोस्त बहुत असर रसूख वाला है, जब भी कोई काम हो तो उसे कॉल कर ले, अगर कभी ख़तरा हो तो उस नंबर पर फ़ोन कर लेना, वो बंदा भरोसे के काबिल है। बेतहाशा डरते हुए जोया ने वो नंबर डायल किया। कई सेकंड्स की बीप के बाद फ़ोन उठा लिया गया। दिल में डर भी था कि अगर उसने फ़ोन ना उठाया तो वो क्या करेगी। उसका इस मुल्क में कोई भी अपना नहीं था। अपनी इज्जत के बचाव के लिए ढेरों दुआएं मांगने लगी। रिंग जा रही थी, इसका मतलब था कि फ़ोन ऑन था। हेलो, एक मर्दाना पुरएतमाद आवाज़ उभरी। प्लीज़ मेरी बात गौर से सुने, मैं जोया हूँ, भाई ने मुझे आपका नंबर दिया था, मैं अकेली हूँ, कोई मेरे फ्लैट में घुस आया है, आप प्लीज़ कुछ करें, वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मदद करें, कोई कुछ कर ले उससे पहले। फूट फूट कर रोने लगी। मर्द की कमी उसे हर पल महसूस होती थी, लेकिन आज शैतान का साया सर पर मंडला रहा था। दरवाजे पर जोर से लात पड़ी तो जोया चीख उठी। मुझे लगता है वो अंदर आ जाएगा, मेरी इज्जत का तमाशा ना बन जाए,
प्लीज जल्दी कीजिए। अल्तमश ने गहरा सांस भरा। एहसन की बहन का नंबर देखकर इमरजेंसी हालात का खतरा पहले ही था। उसकी आवाज़ थोड़ी पुरसकून थी, जैसे हर चीज़ का अंदाज़ा हो। जोया दरवाज़ा बंद रखो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। घबराओ नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। जोया उसकी पूरी बात ना सुन सकी थी। ज़ोर से सर पर हाथ मारने लगी। स्क्रीन ब्लैक हो चुकी और चार्जर कमरे के बाहर था। कमरे में मुकम्मल खामोशी, सिर्फ दरवाजे पर पड़ती लातों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जोया दीवार से लगकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो शख्स आएगा या नहीं, मदद मिलेगी या नहीं, कुछ पता नहीं था। बस एक दुआ, एक आस और एक अंधेरी रात थी। या अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। अल्तमश बिना किसी देरी के वहाँ से निकला था। पुलिस से मुसलसल राब्ते में होने के बाद वो जोया की लोकेशन उन्हें भेज चुके थे। दूसरी तरफ जोया का भाई एहसन भी बड़ा परेशान था। इतना दूर था कि सिवाय दुआ के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कमरे के अंदर वो कांपते वजूद के साथ दीवार से लगी बैठी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दरवाजे पर जोरदार धमाके हो रहे थे। चोर जैसे पागल हो चुका हो और पक्का इरादा कर चुका था कि यहाँ उसे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं जाएगा। हर लम्हा लगता जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी दरवाजे के बाहर अचानक शोर मच गया। चोर, जो ये समझ बैठा था कि वहां कोई नहीं आएगा, अचानक हमला होते देखकर घबरा गया। किसी मर्द की बुलंद आवाज, सख्त लहजा और गालियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। कोई मुसलसल उसे मार रहा था। जोया ने दरवाज़ा बंद रखा। वो मज़ीद डर चुकी थी। अल्तमश ने पुलिस को उसे ले जाने का इशारा किया। फिर अचानक खामोशी छा गई और कुछ ही लम्हों बाद जोया के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बजा। जोया, दरवाज़ा खोलो, सब ठीक है, वो शख्स पकड़ा गया है। जोया ने घबराकर दरवाज़ा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था। अल्लाह की ज़ात का शुक्र था कि उसने अल्तमश को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। तुर्किश खदोखाल, तीखे नक्श, संजीदा आंखें और गैर मामूली वक़ार शख्सियत, जैसे अंधेरे में चमकता एक रोशनी का मीनार हो। उसकी खूबसूरती देखकर जोया का दिल डूब कर उभरा। मैं अल्तमश, तुम्हारे भाई का शनासा। उसकी आवाज़ में इतना ठहराव और दलासा था कि जोया का सहमा हुआ दिल कुछ लम्हों को पिघल सा गया। उसके सर पर हाथ रखकर दलासा दिया कि वो अब महफूज हाथों में है। वो आंसू साफ करती कुछ बोल ना पाई, बस मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खड़ी थी। साकित नज़रों से ज़मीन को घूरे जा रही थी। वो आगे बढ़ा, धीरे से उसका बैग उठाया। ये शहर महफूज ज़रूर है, मगर तुम तन्हा नहीं हो। तुम जिस सोसाइटी में रहती हो ये इतनी सेफ नहीं है। तुम्हारा भाई दूर है, लेकिन उसने सही हाथों में तुम्हें अमानत के तौर पर दे दिया है। जोया की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। अगर उसके अपने यहाँ होते तो वो 2 घंटे इंतज़ार की सूली में लटकती ना रहती। उसका दिमाग सुन हो रहा था, ये सोच कर ही कि अगर ये शख्स वक्त पर ना आता तो इसका क्या होता। गुमनाम शहर में गुमनाम मौत हो जाती। अगर मेरे अपने होते तो शायद मैं आज इतनी तन्हा ना होती। वो धीरे से बोली, लेकिन लहजे में कड़वाहट भरी पड़ी थी। इतनी छोटी लड़की और इतना सख्त लहजा। अल्तमश ने उसकी तरफ देखा, गहरी परखती नज़रों से। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते वक्त, जज्बे और ताफुस के लम्ह से भी बन जाते हैं। उस लम्हे जोया को लगा जैसे वो उन चंद लफ्ज़ों में सब कुछ सुन गई हो जो बरसों से सुनने की प्यासी थी। वो रिश्तों पे वक्त लगाने वाली लड़की। वालिदैन के चले जाने के बाद अकेलेपन ने उसके अंदर खला पैदा कर दिया था। जोया को तसल्ली देने के बाद वो घर के एक एक कोने का जायज़ा लेने लगा। जब यकीन हो गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो अल्तमश ने फ़ोन उठाया, नंबर मिलाकर कॉल की। जोया ठीक है, फ्लैट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अब आपकी बहन महफूज हाथों में है। जोया के भाई ने तशक्कुर भरे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया यार, अभी इस वक्त वो मुझसे बहुत नाराज़ होगी। भाई होकर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर पा रहा। मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करता हूँ। अल्तमश ने उसे तसल्ली दी कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम वहाँ पर जो भी काम कर रहे हो उसे मुकम्मल करके आना। फ़ोन रखते ही अल्तमश की नज़रें एक तस्वीर पर टिक गई। आंखों में एक अजीब सी चमक, एक कश्मकश छुपी हुई थी। उसकी आंखों में इतना दुख था जैसे
बरसों का तन्हा सफ़र हो, जैसे वो किसी की मुंतज़िर हो जो उसे समझे। और न जाने क्यों उस लम्हे अल्तमश को लगा जैसे इस कहानी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ और भी बंधने लगा है। वो उस लड़की की ज़िंदगी को खोजना चाहता था। बेफिक्री की उम्र में वो हद से ज़्यादा संजीदा थी। रात फ्लैट के बाहर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके वो वापस घर को चला गया, लेकिन जोया को सारी रात नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर बाद वो डर कर उठ बैठती। सुबह की रोशनी निकलते हुए उसने पेट में दौड़ते चूहों का इंतज़ाम करने का सोचा, मगर दिल अभी भी सहमा हुआ था। भूखे पेट मरने के बजाय भरे पेट मरना पसंद करेगी। दरवाज़ा बजा, वही शख्स उसका मोहसिन था। उसने जोया की तरफ देखकर नरम मुस्कुराहट से हाथ में कुछ बेकरी और घर के बने लवाजमात दिए। कल से कई मर्तबा उसके भाई का फ़ोन आ चुका था, लेकिन उसने उठाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो सिर्फ फ़ोन कर देना, तुम अकेली नहीं हो। और जाते जाते वो एक जुमला छोड़ गया जो जोया के दिल में देर तक गूंजता रहा। डर के पीछे अक्सर नया आगाज़ होता है, और शायद तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है जोया। सामान पकड़ाकर वो घर के दरवाजे तक जाते जाते फिर से पलटा था और उसे नसीहत करना नहीं भूला। अपने भाई का फ़ोन उठा लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने भाई का हिसाब यूं माफ़ नहीं कर सकती थी। उस दिन के वाक़ये के बाद जोया खुद को मजबूत रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल अब भी रात की दहशत और अल्तमश की नरम आवाज़ के दरमियान उलझा हुआ था। वो उसका बेहद ख्याल रखता, साए की तरह उसके पीछे रहता। उसकी मौजूदगी में वो खुद को थोड़ा महफूज महसूस करती थी, मगर ज़िंदगी में अब भी खला था। उसको यूं लगता कि जैसे वो किसी गैर पर बोझ बन गई हो। उसकी हिफाजत करना इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अल्तमश ने उसके भाई से वादा किया था कि वो जोया का ख्याल रखेगा, और वो उस वादे को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। बुरे वक्त में उसने साबित कर दिया था कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। कभी कभार खूनी रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते अहम हो जाते हैं, चाहे वो वादा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में क्यों ना हो। अल्तमश ने उसे अपने घर आने जाने की इजाज़त दे रखी थी। जोया को इत्तला मिली कि अल्तमश की दादी की तबीयत कुछ नासाज है और वो ख़ास तौर पर इससे मिलना चाहती हैं। आखिर अल्तमश के इतने एहसानात थे, उसने बुरे वक्त में इसका साथ नहीं छोड़ा था। अब दादी की तबीयत खराबी में वो बेमुरवती कैसे दिखा सकती थी। जोया थोड़ा झिझकी, मगर मुरवत में इनकार न कर सकी। रिक्शे पर जाने के बजाय अल्तमश ने खुद उसको गाड़ी भेज दी थी। रास्ते में खूबसूरत से बुके का इंतखाब किया गया। उसे ये तो ज़्यादा नहीं था कि दादी को क्या पसंद होगा, लेकिन फूल तो हर उम्र की लड़की को पसंद होते हैं। अल्तमश का घर वही अजमत और रूप की झलकियाँ लिए, बुलंद दीवारें, साफ सुथरी राहदारियाँ और एक गहरी खामोशी थी। उस शख्स की यूरोपीय खूबसूरती और पुरस्कार पर्सनैलिटी से वो बेहद मुतासिर थी। आइए बीबी जी, दादी अम्मा इंतज़ार कर रही हैं, एक मुलाजमा ने एहतराम से कहा। उसके भाई की इतने बड़े आदमी से दोस्ती होना काफ़ी हैरान कुन था। वो लोग तो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले थे। झिझकते हुए वो दादी के कमरे में दाखिल हुई। एक बूढ़ी सफ़ेद बालों वाली चमकती आंखों वाली खातून ने उसे बाहों में भर लिया। उनके पास से ममता की खुशबू आ रही थी। इतने अरसे बाद किसी ने जोया को यूं गले लगाया कि उसकी आंखें ही भर आई। उसकी माँ भी हमेशा उसे ऐसे ही गले लगाया करती थी। अब तो 2 साल बीत गए थे उनके गले लगे हुए। अल्लाह, ये तो जीती जागती गुड़िया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर दुआएं दी। वो फूल उनकी तरफ बढ़ाती धीमे से मुस्कुरा दी। दादी को ये गोल मटोल सी छोटी सी लड़की अपने पोते के लिए बहुत पसंद आई थी। पहली नज़र में ही वो उसको मुंतखब कर चुकी थी। कुछ ही देर में उनमें अच्छी खासी दोस्ती हो गई। यूं लग रहा था कि जैसे दोनों बरसों की सहेलियां हों। दादी हर थोड़ी देर बाद उससे कोई ना कोई सवाल पूछ लेती, जबकि वो बेचारी तो नए घर और इतने ज़्यादा नौकर चाकर में घबरा गई थी। यही है ना वो लड़की जिसने यहाँ चोर को भगाकर अपने हौसले से सबको हैरान कर दिया। जोया हल्का सा मुस्कुरा दी, नजरें झुका ली। दादी, अगर अल्तमश वक्त पर ना आते तो मैं उस चोर का वाकई मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं इनकी एहसानमंद हूँ जो उन्होंने इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मेरा पोता है ही ऐसा।
तुम भी बहुत प्यारी हो। थोड़ी देर बाद अल्तमश भी कमरे में आया। सादा लिबास मगर चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। दादी को उसकी इसी संजीदगी से मसला था। यूं लगता था जैसे हर वक्त कोई जंग चल रही हो। इतनी संजीदगी जिंदगी में अच्छी नहीं थी। दादी, आपकी तबीयत ठीक है? हमेशा की तरह उनका फरमाबरदार पोता उनके पास ही आया था। काफी देर वो उन दोनों की बातें करते रहे। अल्तमश सिर्फ उनकी बातों को सुन रहा था। खुद से बात करना उसने जरूरी नहीं समझा। दादी, अब मुझे इजाजत दे। आती जाती रहा करो, वरना इन दीवारों से बातें करने की अब मुझे आदत हो गई है। तुम्हारे भाई का नंबर लेकर रख लिया है। वैसे तुमने अपना कहीं रिश्ता तो नहीं कर रखा? दादी की आखिरी बात पर वो झिझक कर सुर्ख हो गई। अल्तमश भी तीर की तरह सीधा हुआ। वो अपनी दादी को अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि उनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। जी? जोया के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी का मिला जुला रंग था। बेचारी बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। दादी की ऐसी बातों का क्या जवाब देती? अल्तमश ने उनके जाने के बाद दादी को घूर कर देखा। ऐसे घूर कर मत देखो, मेरी तबीयत खराब होने लगती है। वो चालाकी से बात फेर गई तो वो नफी में सर हिलाने लगा। तो फिर कैसे ठीक होगी आपकी तबीयत? ठीक तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगे, दादी ने शोखी से कहा। इतने भोले मत बनो। वैसे तो तुम मुझे देखते ही सारी बात निकलवा लेते हो और अब मेरे इतने वाज़ेह इशारे को भी नहीं समझ सके। किसी लड़की से मैं भला क्यों पूछूंगी कि उसका रिश्ता हुआ है या नहीं? मेरे 1000 पोते तो नहीं हैं। कमरे में खामोशी छा गई। दादी, आप जानती हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने दोस्त से एहसान के बदले कोई एहसान नहीं मांग सकता था। इतनी छोटी उम्र की लड़की भला उसके साथ कैसी लगी? वो दर्द से भरी आंखें, शायद वो खुद भी किसी को हम सफ़र मुंतखब नहीं करना चाहता। क्यों? दादी ने झट से पूछा। क्या आपको हम दोनों की उम्र में वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता? वो पहले ही माँ बाप के चले जाने के बाद अकेली रह गई है। अगर मैंने एहसन के कहने पर उसकी हिफाजत का जिम्मा ले ही लिया है तो अब मैं एहसान का बदला एहसान के तौर पर लूँगा। अल्तमश की आवाज़ में नरमी भी थी और हदबंदी भी। दादी ने गहरी सांस ली। दादी की ख्वाहिश को ऐसे रद्द कर देगा? वो बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए। फिलहाल तो नहीं, लेकिन सोचूंगा दादी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जोया उनकी बातों को मुकम्मल तौर पर समझ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और खुद दिल में उसने अहद किया कि वो आइंदा दादी से मिलने नहीं जाएगी। बुजुर्ग लोग मोहब्बत में ऐसे फैसले कर ही लेते हैं और फिर उन पर बज़िद भी हो जाते हैं। कमरा कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था, लेकिन माहौल किसी ऑफिस के बजाय किसी फिल्मी सीन जैसा महसूस हो रहा था। अल्तमश ने पूरे होशो हवास में ये फैसला किया था। जोया सामने बैठी थी एतमाद के साथ, मगर आंखों में हल्की सी चमक थी। अल्तमश कुर्सी पर पुश्त लगाकर बैठा था, जैसे किसी फाइनल डील की तैयारी कर रहा हो। जोया ये बात भूल गई थी कि जो लोग रिश्तों का मजाक बनाते हैं उनका खुद का मजाक बन जाता है। किस्मत उन्हें उस मुकाम पर ज़रूर लेकर आती है कि वो अपने फैसले पर खुद पछताने लगते हैं। दोनों के बीच मेज़ पर एक फाइल रखी थी, अज़दवाजी मुआहिदा। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर पड़ा था। दोनों ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार थे। जोया को वक्ती ही सही लेकिन साइबान की ज़रूरत थी। अपने भाई की वापसी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। जोया ने कागज़ पलटते हुए कहा, तो आपकी दादी को खुश रखने के लिए ये शादी कर रहे हैं और आपकी सहूलत के लिए शराइत? वो बहुत बड़ा सौदागर था। अल्तमश ने सर हिलाया। और तुम्हें माशरती तहफ़्फ़ुज़, एक महफूज घर और मुकम्मल आज़ादी दे रहा हूँ। हम दोनों जानते हैं ये शादी हकीकत नहीं, सिर्फ दिखावा है। दादी के लिए, दुनिया के लिए। इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। तुम्हें भी वक्ती ही सही लेकिन तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुझसे बढ़कर तुम्हें इस शहर में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। जोया ने कलम उठाया और बोली, फिर सुन लीजिए मेरी शराइत भी, क्योंकि मुझे अपनी सहूलत भी देखनी है। हमारे दरमियान शादी सिर्फ कागजी होगी, कोई जज्बाती या जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, और मुझे तालीम और नौकरी जारी रखने की मुकम्मल आज़ादी होगी। कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दादी अम्मा को खुश रखने के लिए रोज़ाना कम से कम एक खाना हम साथ खाएंगे, चाहे खामोशी में ही क्यों ना हो।
मुझे हफ्ते में एक दिन अकेले रहने की आज़ादी होगी, जिसके साथ चाहूँ वक्त गुजार सकती हूँ, और हम दोनों के कमरे अलग होंगे। वो उंगलियों में पेन जो घुमा रहा था और जोया सोच सोच कर अपनी शराइत बोल रही थी। अल्तमश ने शराइत पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई, फिर फाइल अपनी तरफ खींचकर अपनी शराइत निकाली। मुझे तुम्हारी शराइत से कोई मसला नहीं, अब मेरी बातें सुन लो। किसी को ये ना मालूम हो कि ये शादी मुआहदे पर मबनी है। खुसूसन दादी और एहसन के सामने तुम इस बात का जिक्र नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता हम उनके जज्बात का मजाक बनाएं। शादीशुदा बीवी की तरह तमाम तकरीबात और दावतों में शरीक होना लाजिम होगा, चाहे ज़बरदस्ती मुस्कुराना ही क्यों ना पड़े। मेरे कमरे में सुबह की पहली दस्तक तुम्हारी होनी चाहिए, चाहे सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने के लिए ही सही। जोया गर्दन ऐसे हिला रही थी जैसे उसे किसी भी चीज़ या शराइत से कोई मसला नहीं। आखिरी शर्त को तो उसने मुस्कुराकर ज़रा हल्के में लिया, ये जाने बगैर की किस्मत उन दोनों के साथ क्या खेल खेलने वाली है। अगर किसी एक फरीक के दिल में वाकई जज्बात आ जाएं, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा, और तब बात सिर्फ दिल की नहीं, फैसले की होगी। जब हम कुदरत के फैसलों को अपने हाथ में लेते हैं, खुद कुदरत भी हमारे साथ मजाक करने लगती है। जोया ने तीखी नज़रों से अल्तमश को देखा। मैंने कभी मर्द को इतना इनसिक्योर होते नहीं देखा। औरत का शराइत रखना समझ में आता है। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कि तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी? छठी शर्त कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अल्तमश ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ जायज़ है, अगर मुआहदा सिर्फ अकल से नहीं कभी दिल से भी टूट जाए। दोनों को जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत पूछ कर नहीं होती, किसी भी लम्हे दिल में आकर बस जाती है। उसके ये अल्फाज पूरे होने वाले थे। एक लम्हे को दोनों खामोश हुए, जैसे दोनों को कुछ एहसास हुआ हो। फिर जोया ने खामोशी से कलम उठाया, दस्तखत किए और फाइल बंद कर दी। आरजी शौहर, शादी मुबारक हो। अल्तमश ने शरारती लहजे में जवाब दिया। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, इस बात से किसी को कोई मसला नहीं। तुम्हें भी मुबारक हो मिस शर्तो शराइत। दादी अम्मा और जोया का भाई उस सारे मुआहदे से बेखबर थे। उन्हें लगता था कि यह आम मोहब्बत भरी शादी है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे कई अनकहे जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगे थे। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह पुरसकून, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। जोया, जो अब मिसेस जोया अल्तमश कहलाई जाती थी, ऑफिस में अपनी पुरानी जिम्मेदारियों पर मौजूद थी, बतौर सेक्रेटरी। सब लोग अल्तमश की बीवी को यूं सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करता देखकर काफ़ी हैरान थे। जोया को भी अपनी तौहीन लगी थी। वो उसे किसी और पोस्ट पर भी रख सकता था, लेकिन अल्तमश ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि वो चाहता है उसकी बीवी उसकी नज़रों के सामने रहे। दोनों के दरमियान सिर्फ नज़रों का तबादला होता। जोया ने कॉन्ट्रैक्ट के बाद अकेले में उसे कभी बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की थी, मगर आज वो अपनी मेज़ पर बैठी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी कि सामने से साद आ गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का शरारती और बेतकल्लुफ़ सा लड़का था। बहुत कम वक्त में उसने ऑफिस में बहुत से दोस्त बना लिए थे, और उसमें सरे फहरिस्त जोया का नाम था। उसकी शरारती नटखट बातों से हमेशा जोया का मूड फ्रेश हो जाता। अरे जोया, वो लास्ट मीटिंग वाली प्रेजेंटेशन कमाल की थी। मेरा मतलब है, बॉस के अलावा कोई तो है जो तुम पर मर मिटता है। जोया ने उसकी बात पर दिल में अफसोस से कहा कि काश अल्तमश भी उसकी ज़रा सी तारीफ कर देता। कॉन्ट्रैक्ट में उसकी नौकरी करना तो नहीं लिखा था, लेकिन वो चाहती थी कि जब तक वो उसके निकाह में है तब तक कम से कम खर्चा खुद उठाए। फर्जी रिश्तों पर अपना मुआशी बोझ नहीं डाला जाता। बेशक ज़रा सी रकम से अल्तमश के ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी खुददारी भी किसी चीज़ का नाम है। जब तक साथ की शरारती आंखें उस पर टिकी हुई थी, जोया हंस पड़ी। हंसी में बेफिक्री और मासूमियत थी। उसकी हंसी की खनक ने किसी के बढ़ते कदम रोक लिए थे। उसने मुड़कर इन दोनों को देखा। अपने शीशे वाले केबिन से बेतकल्लुफ़ी की बढ़ती हदों को बड़े गौर से देख रहा था। चेहरा सपाट था, मगर आंखों में कुछ तेज सा चमकने लगा, जैसे बेकाबू धड़कन को वो खुद से छुपा रहा हो। ये नया लड़का उसे बहुत पुरस्कार लगा था। हर वक्त लड़कियों के करीब दोस्ती के रवाबित बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता। 5 मिनट वो उन दोनों का खेल तमाशा देखता रहा। साथ की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर अल्तमश का सब्र लबरेज हुआ। अगले ही लम्हे उसने ऑफिस इंटरकॉम पर कहा,
साद मेरे केबिन में आओ फौरन। जोया ने मुड़कर उनके केबिन की तरफ देखा और साद को बेस्ट ऑफ लक कहा। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी। साद की फैमिली यहाँ से दूर थी, इस वजह से वो ज्यादा उदास रहता था और बातें करने के बहाने ढूंढता था। 10 मिनट बाद साद की शक्ल उतरी हुई थी। फाइल्स का एक ढेर उसके हाथ में था। अल्तमश का रवैया काफी सख्त था। साद की बेतुकी बातों से पूरा स्टाफ आजकल काम पर ध्यान नहीं देता था। खासकर इसकी बीवी का ज्यादा दिल लग चुका था। सर ने पूरे हफ्ते की रिपोर्ट्स और अगली 2 प्रेजेंटेशंस की तैयारी का काम मुझे दे दिया है। साद ने जोया से मुंह बनाते हुए कहा, यकीनन तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत महंगी पड़ी मुझे। जोया ने हैरानी से अल्तमश के रवैये को महसूस किया। दिल में सवालात उभरने लगे। वो जानती थी कि यह सिर्फ साद को गलत फहमी हुई है। अल्तमश और जोया के दरमियान ऐसे कोई राब्ते नहीं थे कि जेलसी का जज्बा पैदा हो सके। वो उसकी ज़िंदगी में अमल दखल करने का कोई हक नहीं रखता। इन दोनों के दरमियान जो शराइत तय पाई थी, अब तक दोनों उसका एहतराम कर रहे थे। यकीनन साद को उसकी सुस्ती की वजह से इतना काम दिया गया था। साद की बातों का असर था कि वो अब तक अल्तमश में खोई हुई थी। जोया मामूल के मुताबिक कुछ फाइल्स लेकर अल्तमश के केबिन में गई। वो सर झुकाए काम में मसरूफ था। ये रिपोर्ट्स दस्तखत के लिए हैं सर। अल्तमश ने कलम रखते हुए बगैर उसकी तरफ देखे सख्त लहजे में कहा। उसे गुस्सा था कि उस ऑफिस में वो उसकी बीवी की हैसियत से पहचानी जाती है। अगर वो यहाँ उसके एम्प्लॉयज़ के साथ बेतकल्लुफ़ी करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये भी ख्याल रहे मिसेस अल्तमश कि ये दफ्तर है, ना कोई कह कहूँ का क्लब। मैंने आपके लिए कोई तफरीही मुकाम नहीं बनाया। यहाँ आकर काम करना अब आपका अपना फैसला था और अपने फैसले पर कायम रहना भी सीखिए। जोया चौंकी। उसके लहजे को महसूस करके बेइज्जती सी महसूस हुई। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब की बार वो नज़रें उठा चुका था। गलती नहीं, लापरवाही की निशानी है। प्रोफेशनलिज्म चाहिए, चाहे रिश्ता वक्ती ही क्यों ना हो। जोया का दिल जख्मी हुआ, मगर वो कुछ ना बोली। वो आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। खुले लफ्ज़ों का इंतखाब करता तो शायद वो जल्दी समझ जाती। और हाँ, आज रात से तुम्हें फ्लैट खाली करना होगा। तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे कांधों पर है। जितने तुमने राब्ते बढ़ा लिए हैं, तुम्हारा उस फ्लैट में रहना ठीक नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि अल्तमश की बीवी अब एक फ्लैट में अलग से रह रही है। उसने मज़ीद कहा। जोया की आंखें हैरत से फैल गई। लेकिन क्यों? ये तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। हाँ है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरे उसूलों की इज्जत करती हो। अब तुम्हारी जगह गेस्ट हाउस में होगी, मेरे खर्चे पर, ताकि दादी को कुछ शक ना हो। जोया की आंखों में नमी उभर आई। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाह का सोचकर उसका दिल भारी सा होने लगता। कहीं उसने जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर लिया। जब उस फैसले की हकीकत का बाकी सबको मालूम होगा तो वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। उसने धीरे से खुद से सवाल किया, मगर अल्तमश चुप रहा। वो खामोशी से बाहर निकल गई। दिल में भारी बोझ लगा। अल्तमश सारा दिन उन दोनों की हंसी की गूंज में खोया रहता था। जोया कभी खुलकर उसके साथ ऐसे मुस्कुराई भी नहीं थी। साथ में ऐसा क्या था कि वो कम वक्त में बेहतरीन दोस्त बन गए थे। कमरे में खामोशी थी, मगर अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्यों बुरा लगा? साथ की बात, जोया की हंसी, या अपनी बेख्तियारी? ये सवालात उसके अंदर गूंज रहे थे। कहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट की वो खुद ही खिलाफ वर्जी न कर बैठे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि उसे जोया की मुस्कुराहट पर हक चाहिए। अभी नहीं, शायद कभी नहीं। मगर वो जानता था वो मुआहिदा अब सिर्फ शराइत तक महदूद नहीं रहा। दूसरी तरफ जोया ऑफिस के काम से थकी हारी घर आई थी। पहले से ही उसका शौहर आ चुका था। वो सूटकेस पैक कर रही थी, दिल में सवालात, आंखों में नमी। क्या मैं सिर्फ एक कागज़ पर लिखी बीवी हूँ, या उसके दिल में वाकई कोई जगह बन रही है? वो नहीं जानती थी, लेकिन एक बात वाज़ेह थी। अजीबो-गरीब इंसान था, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी वो ऐसे रवैया रखने लगता कि जैसे वो इसकी असल में बीवी हो, और कभी इतना बेगाना हो जाता कि उसकी ज़ात से कोई सरोकार ही नहीं। जोया फ्लैट से उनके घर में शिफ्ट हो गई थी। दादी की तो मानो खुशी से ईद ही हो गई। उन्होंने उन दोनों को इतनी दुआएं दी कि दोनों अपने आप में शर्मिंदा हो गए।
معاہدے کی ایک شرط کے تحت وہ ہر ہفتے ایک دن اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ آج وہ ساتھ کے ساتھ ایک کیفے میں تھی جہاں وہ چند دوستوں کے ساتھ اس کی سالگرہ منانے آئی تھی۔ اس کے گھر والے یہاں موجود نہیں تھے، اس لیے ساتھ میں سب کی پارٹی رکھی گئی تھی۔ ویسے تو ساتھ دونوں میاں بیوی کو اکٹھے بلانا چاہتا تھا، لیکن زویا نے کہا شاید اس کے شوہر کی اپنی گیدرنگ ہو۔ ہنسی مذاق، کیک، خوشبودار کافی اور زویا کا کھلتا ہوا چہرہ تھا۔ زویا، تمہاری ہنسی واقعی میرا دن بنا دیتی ہے، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا نے شوخی سے جواب دیا، تو پھر تمہیں روز سالگرہ منانی چاہیے۔ سعد اس کا جتنا مرضی اچھا دوست صحیح، لیکن ان دونوں میں آپس میں کبھی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پاس کی میز پر بیٹھا ایک شخص خاموشی سے کافی پیتے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ التمش۔ اتفاقاً وہ اپنے کلائنٹ سے اسی کیفے میں ملنے آیا تھا، لیکن جب زویا پر نظر پڑی کسی اور کے ساتھ یوں بے فکری سے ہنستے ہوئے تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا برا لگ رہا ہے، زویا کا اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے بات کرنا یا اس کا ساتھ سے بات کرنا۔ چہرہ سنجیدہ، نظریں سخت، مگر وہ کچھ کہے بغیر فون نکال کر کلائنٹ کو کال کرنے لگا۔ میٹنگ کینسل ہے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ زویا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ارد گرد دیکھنے پر کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیا۔ التمش کا غصہ سوا نیزے پر تھا، خود سے ایک سرد جنگ لڑ رہا تھا، ہر کسی کو الٹے جواب دینے لگا۔ کافی کا آخری گھونٹ اس نے سختی سے حلق سے اتارا اور وہاں سے چلا گیا، مگر دل میں ایک عجیب سا بھاری پن چھوڑ گیا۔ پارٹی انجوائے کرنے کے بعد رات کے آخری پہر زویا گھر پہنچی تو دروازہ التمش نے خود کھولا، نگاہوں میں سرد میری، لبوں پر خاموش تلخی۔ تو مزہ آیا آزادی کے دن؟ ساتھ خوش ہوا؟ وہ لڑکی حد سے زیادہ بے وقوف تھی، کیسے کسی انجان لڑکے پر اتنا بھروسہ کر سکتی تھی، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ وہ اسے خود چھوڑنے کو آیا تھا۔ وہ آدمی کیا سمجھ رہا ہوگا کہ شوہر نے کتنی ڈھیل دے رکھی ہے؟ زویا ٹھٹک گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ التمش آگے بڑھا اور آرام سے مگر طنزیہ لہجے میں بولا، اگر تمہیں فرصت مل جائے کہوں اور کیفے کی دنیا سے تو کبھی دادی کو بھی وقت دے دیا کرو۔ تمہاری شادی ان کے خوابوں کا حصہ ہے، تمہاری فرصت کا نہیں۔ دنیا کے سامنے ہمارا یہ نکاح عارضی نہیں ہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنا بے غیرت شوہر ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں وہی پرانی نمی چمکنے لگی۔ وہ خود کو مضبوط رکھتے ہوئے بولی، وہ مرد کاغذی رشتے پر اتنا روب جما رہا تھا۔ مجھ پر طنز مت کریں التمش، یہ سب آپ ہی کا بنایا ہوا کانٹریکٹ ہے، جس میں محبت، جذبات یا رشتہ کچھ بھی نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ شادی صرف آپ کی دادی کے سامنے ہے، حقیقت میں نہیں۔ التمش کا چہرہ تن گیا جیسے کسی نے اندر کی بات باہر نکال دی ہو۔ تو ٹھیک ہے، یاد دلا دیا تم نے، یہ معاہدہ ہے اور تم بس ایک معاہدہ ہو، اس نے سختی سے کہا، مگر آواز میں دبی ہوئی تکلیف واضح تھی۔ زویا کا دل کانپ اٹھا، آخر وہ اسے کہنا کیا چاہتا ہے؟ جب یہ رشتہ ہوا تھا تو دونوں کی مرضی شامل تھی، پھر اسی معاہدے کے مطابق مجھے میری سانسیں لینے دے، بغیر کسی نظر کے جو ہر لمحہ مجھے تولتی رہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر دل میں ایک الجھن سی باقی رہی۔ دوسری طرف التمش کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو تکتا رہا۔ لڑکی اس رشتے کو عارضی ہی سمجھتی ہے، تم کیوں دل لگا بیٹھے ہو؟ کیوں برا لگا؟ ساتھ کے ساتھ ہنسی، یا یہ یاد دلانا کہ سب صرف ایک کاغذی رشتہ ہے؟ کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب صرف دل میں ہی ملتے ہیں، اور وہ دل آج بے چین تھا۔ اس دن کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر التمش نے اسے کہیں بھی دیکھ لیتا تو راستہ بدل دیتا۔ زویا اس کی یہ بے رخی اور اچانک بدلتے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جان سکے آخر اس کے دماغ میں چل کیا کر رہا ہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی، اور آج اس کے کہنے پر وہ اپنے دماغ کو فریش کرنے آئی تھی۔ زویا نے ساتھ کے اصرار پر اسے سالگرہ کے بعد کی چائے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلایا، صرف ایک نارمل سا گڈ ول گیسچر سمجھ کر۔ وہ اس کی بات پر پہنچ بھی آئی تھی، مگر ساتھ جو ہمیشہ سے التمش سے حسد کرتا تھا، زویا کے لیے اپنے دل میں کچھ اور ہی رکھتا تھا، غلط مکروہ ارادے۔ التمش شروع سے اس کے بارے میں ذرا بھی مطمئن نہیں تھا۔
زویا یہ جوس لو، بہت اچھا ہے، اسپیشل بنایا ہے۔ سعد نے مسکرا کر گلاس آگے بڑھایا۔ زویا کو لگا یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اپنی انسیکیورٹی کو واضح کرنے کے بجائے اس نے دل میں ارادہ کیا کہ جوس پی کر نکل جائے گی۔ زویا نے ناسمجھی میں وہ جوس پی لیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے چکر آنے لگے، نظروں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ سعد، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا دل اچانک سے گھبرانے لگا، یوں لگا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو، لیکن اب وہ کہیں بھاگنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سعد نے قدم بڑھایا، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ، آنکھوں میں خباثت تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اور وہ جھوٹی باتیں، سب پردہ اتر گیا تھا۔ بس تھوڑا سا مزہ، ڈرو مت، سب ٹھیک ہوگا۔ زویا کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے مجھے علم بھی نہیں تھا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ آگے بھاگنے لگی لیکن ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ التمش، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے سعد کو دھکا دیا تو وہ دیوار سے جا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، کاکروچ کے منہ والے، میری بیوی کو نشہ کروانے کی؟ اس پر گندی نیت رکھتے ہو؟ سعد بمشکل اٹھا، مگر التمش نے دوبارہ اس کے گریبان پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ یہ میری بیوی ہے، چاہے کانٹریکٹ پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اس تک پہنچنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اس نے سیکیورٹی کو بلوایا، پولیس کو اطلاع دی اور سعد کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ آخری مرتبہ زویا نے صرف التمش کو دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اپنے فیصلے پر وہ بہت شرمندہ تھی۔ زویا بیڈ پر نیم بے ہوش سی لیٹی تھی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے التمش بیٹھا تھا، پانی کا گلاس تھامے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ التمش نے نرمی سے گلاس آگے بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ گلٹ میں ہے، کسی نامحرم پہ بھروسہ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ قصور تمہارا نہیں زویا، تمہیں صرف اعتماد کرنا آیا، لوگوں کی نیتیں تمہاری طرح صاف نہیں ہوتی۔ زویا خاموشی سے گلاس پکڑ کر ایک نظر التمش پر ڈالتی ہے۔ زویا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کی ساری سوچیں صرف اور صرف التمش کے بارے میں تھی۔ وہ آدمی ہمیشہ اسے مشکل وقت میں نکال لیتا تھا، لیکن ان دونوں کا رشتہ تو عارضی تھا۔ جب یہ کانٹریکٹ ختم ہوگا تو کیا وہ اس کی زندگی میں ویسے ہی اسے بچانے آئے گا؟ اس کا دل ایک دم سے گھبرانے لگا۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ اس شخص کی بات اس نے پہلے کیوں نہیں مانی۔ چند دن بعد التمش کا آفس، دونوں کے لیے یہ دن بڑی مشکل سے کٹے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے بغیر سامنا کیے۔ زویا التمش کی ٹیبل پر فائل رکھ کر جانے لگی، مگر اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے التمش پر ٹک گئی۔ اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ کانٹریکٹ کی یاد نہ دلا دے۔ زویا کو خود اپنی کمکلی پر غصہ آ رہا تھا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کو وہ کھیل کیسے سمجھ سکتی ہے؟ بے شک حالات جتنے بھی برے سہی، اسے اس رشتے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ دادی اور اپنے بھائی سے بھی شرمندہ تھی، جنہوں نے اسے بے تحاشا دعائیں دے ڈالی تھی۔ جب انہیں آج کا علم ہوگا تو وہ انہیں معاف کریں گے، ان کا اعتبار ٹوٹے گا۔ التمش نے سر اٹھایا اور ایک لمحہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر زویا نظریں چرا کر پلٹنے لگی تو وہ بول اٹھا۔ زویا، وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ اب وہ شرطیں، وہ کانٹریکٹ سب بے معنی لگتا ہے۔ زویا کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ دھیرے سے پلٹی۔ تو کیا آپ رہائی چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس کی خطا کی اتنی بھاری سزا دینا چاہتا ہے؟ اب وہ اس کی قابل نہیں رہی؟ ایسے بہت سے سوالات ذہن میں تھے۔ آواز بھی کانپ رہی تھی، جیسے دل کا پردہ ہل رہا ہو۔ التمش اٹھ کر کھڑا ہوا، آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ رہائی نہیں زویا، میں سزا مانگنے آیا ہوں۔ زویا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی سزا؟ وہ حیران تھی۔ عمر قید کی سزا، جو تمہارے سنگ ہو، ہر دن ہر پل تمہارے ساتھ بامشقت محبت کی قید ہو۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ آہستہ سے بولی، یہ قید میں خود مانگنے آئی تھی التمش۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی دلوں کی چیخ تھی۔ التمش نے زویا کا ہاتھ تھاما
آہستہ سے اس کی انگلی پر پہنا وہ کانٹریکٹ کی نشانی والا سادہ سا رنگ